الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بھائی، سب دل سے اللہ کی طرف توجہ ہوں تاکہ دل نرم ہو جائے، دل ہی دل میں اللہ کی طرف توجہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائیے اور بات کو ہمارے دلوں کو بتائیے، ہمارے دل کی آنکھوں کو دل روشن فرمائیے، دل دل میں اللہ سے مانگے۔ میرے بھائیو، اب الحمدللہ ایک لمبے وقفے کے بعد پھر سے ملنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کو پورے شرائط کے ساتھ جاری رکھیں، اس لیے کہ ابھی بیماری گئی نہیں، مسافہ نہ کریں، معانقہ نہ کریں، آتے ہوئے سینیٹائزر استعمال کریں، جاتے ہوئے استعمال کریں۔ ابھی پانی پی رہا تھا کہ یاد آ رہا تھا گلاس ہے کہ اس میں کیا سسٹم ہو سکتا ہے۔ شرائط کا پورا خیال رکھیں، ماسک پہن سکتے ہیں، برداشت ہو سکے ماسک پہن کے رکھیں، بیان کرنے والا تو موجود ہے، اور مجھے ماسک برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس سے مجھے کھانسی سے شکایت ہے، جلدی کھانسی ہے۔ پھر سے الحمدللہ ہم جڑ رہے ہیں۔ پھر محرم کا مہینہ بھی ہے، محرم کا مہینہ کیا ہے؟ پھر نیا سال ہے، وہ ہجری کے اعتبار سے نیا سال ہے۔ پھر یہ کورونا کے حساب سے اگر احساس کرے تو ہم لوگ کی یہ نئی زندگی، اس لیے کہ ہم بھی مر سکتے تھے جس وقت بہت سارے لوگ مرے، ہم میں سے بہت لوگ بیمار ہو کے بھی پھر ادھر جانے کا بھی ادھر آ گئے، کسی بھی بیماری آ سکتی ہے، اتنے لوگ جا رہے تو ہم بھی جا سکتے، ہر عمر کے لوگ گئے ہیں، تو یوں سمجھنا ایک نئی زندگی اللہ نے دی ہے۔ تو اس کا شکریہ یہی ہے کہ ہم بالکل دل کی گہرائی سے اچھی زندگی گزارنے کا ڈر ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک سانس میں اس کو اچھے ڈھنگ سے گزارنا۔ وقت کی اہمیت کا احساس، بخاری شریف کی روایت حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں لوگ بہت نقصان اپنا کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں۔ آفس کے پیسے کو کوئی کھا جائے تو اس کو غبن کیا ہو، تو یہ دو چیزوں کی قدر نہیں کرنے کو حضور غبن بولتے ہیں، مقبول فیما غبن کر رہے ہیں سب لوگ۔ الصحت والفراغ، کہ صحت کو غنیمت نہیں سمجھ رہے، صحت کا وقت اس طرح صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کرنا ہے، نہیں مبتلا نہیں ہوئے ہم کورونا میں یا مرے نہیں، اب صحت ہے تو ایک نعمت ہے، چلے گی۔ اب یہ جو صحت ہے، یہ جس کو ٹائیفائڈ ہوا ہے، سب کچھ کتنی تکلیف ہوتی ہے، متلی ہے، اب ہم کھانا بھی اچھا کھا رہے ہیں، ہضم بھی اچھا ہو رہا ہے، طبیعت فریش ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت کا ایک دن ملا تو کچھ کام کے لیے ملا ہے، اور مومن کو، انسان کو اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ بنا کے بھیجے، اپنا نائب بنا کے بھیجے، اور ہمارے اندر جو بھی صلاحیتیں رکھی اس کو امانت کہا گیا ہے، نا عرض امانت، یعنی ہم کو جو ہوشیاری دی گئی، ہم کو جو دوسرے جانوروں سے ہٹ کے اچھی صلاحیتیں دی گئی، اور انسانوں کو ایک ماحول ملا ہے ترقی کرنے کا، تو یہ پوری صلاحیتیں اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے جس کام کے لیے دیا ہے اسی میں استعمال کرنا ہے اپنی پوری صلاحیتوں میں، یعنی اوقات میں پلاننگ کے ساتھ جو مقاصد ہیں اس پہ استعمال کرنا، تو یہ امانت صحیح جگہ پہ استعمال ہوئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہم کو نئی پھر سے زندگی دی ہے، تو وقت کی قدر کرنے کا عزم کرو، اللہ سے مانگیں، اور فرمایا قیامت کے دن اللہ جب حساب لیں گے تو کسی کا قدم ہٹ نہیں سکتا، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ زندگی کہاں گزاری، عن عمرہ فیما افنیٰ، 60 سال تم کو عمر ملی تھی، 70 تم کو ملی تھی، چلو اس کا حساب دو، ایک سال کا حساب دینا ہے، پیسے کا حساب بھی دینا ہے، لیکن پیسے نہیں، خالی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور پھر اس میں وعن شبابہ فیما ابلیٰ، یہ جوانی کو کہاں لے جا کے پورا نہ کیا، جوانی کے دنوں کو پھر الگ سے حساب، اس لیے کہ جوانی میں بہت ایکٹیو رہتا ہے، دماغ کام کرتا ہے، جسم کام کرتا ہے، بہت کر سکتا ہے، اب جو ہماری عمر کو پہنچ گیا
धुन पे आते थे। तो जवानी में बहुत कुछ करने का वक्त है, वो खाली गुजारने का वक्त है नहीं, पूरे कारनामे अंजाम देने का वक्त है। 35 साल 37 साल तक की उम्र, 40 साल के अंदर बहुत कुछ कर देने का वक्त है। तो उसमें अल्लाह ताला अलग से कुछ और जिंदगी क्या है? जिंदगी एक एक सेकंड ही का नाम है। जिंदगी अच्छी गुजारो तो एक एक सेकंड पर चल जाओ, सेकंडों के मजमे का नाम जिंदगी है, वक्त का नाम जिंदगी। वक्त की बर्बादी जिंदगी की बर्बादी। एक एक मिनट हमारा एक एक तोला सोना या एक एक हीरे से बढ़कर है, इसलिए कि इसी वक्त का नाम जिंदगी है। जब हमारी जिंदगी खत्म होगी तो क्या जाने वाला, वक्त ही चले जाना। और हमको पुराने मजीद में जो चौकन्ना किया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों पे तवज्जो दिलाई। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रे के बराबर भी नेकी हो रही है वो देखे तो कल क्या, एक जर्रे के बराबर बुराई हो गई वो देखोगे। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ बनती है। कंकरों के जमा हो जाने से पहाड़ बन जाता है। बड़ा पहाड़ भी है तो क्या है, कंकर ही है, छोटे छोटे रेजे हैं। मिनटों के सही इस्तेमाल से ही जन्नत बनती है, जिंदगी बनती है। मिनटों के गलत इस्तेमाल से दो बनती है। तो हम लोगों को धोखा रहता है बड़े काम, कामयाबी का मतलब कोई करोड़ से कोई काम करना या कोई हंगामा कर देना, उसको हम कामयाबी समझते, उसको काम नहीं। एक एक सेकंड में जो करते हैं ना वही है कामयाबी। छोटी 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 कामयाबियों के सिलसिले का नाम, एक एक घंटे को एक एक सेकंड को कहानी के साथ गुजारने का नाम ही कामयाबी है। बड़ा आदमी ऐसे ही बनता है। इतने बड़े बड़े ताजिर गुजरे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गुजरे हैं, बड़े बड़े वो लोग अपनी ज़िंदगी में लिखे हैं, उसमें यही बात है कि आज दुनिया हमको पूरी दुनिया में बड़ा बड़ा होती है, मगर कम बड़े का चले छोटे छोटे कामों की पाबंदी से बड़े होते हैं। रोज का जो काम है हम सही करते थे, बस ढंग से करते थे, उससे जो बड़ा होता। अब्दुल कलाम की जिंदगी में कोई सुबह शाम तक का अटेंड में पड़ी है, कोई हंगामा करते हुए नजर नहीं आएंगे। रोज के काम भी सही ढंग से करेंगे। कुरान में याद दिलाया गया कि छोटे छोटे अमाल जो समझ सकते हो उसी से बनता बिगड़ता है। बड़े बड़े वाक़यात करने का मौका कभी कभी आता है। जंग में जाकर दुकाएं दे दिए, वो घोड़े घोड़े को पकड़ के खत्म कर दिए, वो कभी कभी होता है। बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिए। असल क्या है, रोज सही गुजारना, सही गुजारना रोजाना। और हमको क्या समझना चाहिए कि हमारे हर एक सेकंड के पीछे अरबों साल की जन्नत या अरबों साल की दोज़ख छुपी हुई है। एक सेकंड खाली नहीं गया। एक सेकंड हमने अगर इबादत में गुजारा, इताअत में गुजारा, तो उसके बदले में जो हूर मिलेगी वो हूर कभी मरेगी क्या? 5 मिनट हमने कोई नेकी का काम किया, दीन के मुताबिक गुजारा, अब वो उस 5 मिनट के बदले में जन्नत में जो हूर मिलेगी वो कभी मरने वाली है क्या? तो ये 5 मिनट अवधि है आपके, 2 मिनट अवधि है आपके, इसमें जो आप और 5 मिनट में आपने जो झूठ बोलकर और किसी को तकलीफ देकर जो अजदहा बना लिया, अब वो कभी मरेगा क्या दोज़ख में? आपका जो झूठ की वजह से आपने 2 ही मिनट में अमल किया था, लेकिन उससे जो अजदहा बना हुआ अभी तो मरेगा कभी भी। अमल हमारा खत्म हो जाता है लेकिन बदला खत्म नहीं होता कभी। अजरुन गैर ममनून, ऐसा अजर है जो गैर ममनून है, हम खत्म नहीं होता। तो एक एक सेकंड हमारा या तो हमको दोज़खी बना रहा है या तो दोज़खी या जन्नती। कोई मिनट ऐसा थोड़ी है कि ना हमको दोज़खी बनाए ना जन्नती बनाए, ऐसा कोई मिनट रहता है जिंदगी? या तो दोज़खी बनेगी या तो जन्नती बनेगी। तो एक एक मिनट के पीछे हमेशा की जन्नत या दोज़ख छुपी हुई, तो मिनट कितना कीमती। बातें बोलना जो है ना बहुत आसान है, सुनना भी आसान है, इसका ख्याल रखना बहुत आसान है। तफरीह भी हम करेंगे थोड़ी देर के लिए तो उसके पीछे भी नीयत रहना चाहिए। तो जब घर में बैठ के बीवी बच्चों से बातें भी कर रहे हैं तो उसके पीछे नीयत होनी चाहिए। तो ये भी याद रखिए, थोड़ा बहुत तो बच्चों को भी नहीं
बीवी को थोड़ा वक्त नहीं है, थोड़ा क्यों अच्छा खासा वक्त देना है, मगर वो अल्लाह के लिए देना है, कमाई के लिए वक्त तो वो भी जो है दीन ही है। अच्छी ड्रेसिंग थोड़ा कर ले तो वो भी दीन ही है, थोड़ी वर्जिश कर ले तो वो भी दीन है, चाहे आदमी करे तो वो भी दीन है, दोस्तों को एक तो फोन करके उसको थोड़ा हंसा रहे हैं करे तो वो भी दीन ही है। सबके पीछे दीन है। जब नीयत होगी तो जन्नत बन जाए। तो हमको जो है हर काम जो है आखिरत के लिए करना है, वक्त ज़ाया नहीं करना है। उसके वास्ते क्या है, वक्त सही गुजारना, तो पहले से प्लानिंग रहना होगा। आज का दिन मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मेरी चिट्ठी एक दिन पहले तैयार है तो आज का दिन सही गुजरता। आज का काम करना है तय नहीं है तो खुद ब खुद वक्त ज़ाया हो जाए। सोचते सोचते में क्या करेंगे में आधा दिन चला जाएगा। अरे कुछ करेंगे भाई, बहुत अच्छा पूरा है, करेंगे में दिन चला जाएगा। प्लानिंग मेरी जिंदगी के सेटअप के एतबार से क्या क्या मेरे ऊपर जिम्मेदारियां है अल्लाह की, मेरी अपनी जिंदगी सकती है। इन दिनों में इस हफ्ते में मेरे क्या काम है करने, प्लानिंग के बगैर वक्त सही गुजर ही नहीं सकता। मामूलात की आदत और प्लानिंग, जो वक्त इस वक्त जो काम करना है उसका नज़्म रहे, उसकी पाबंदी, वरना यही वक्त हमको जहन्नमी बना दिया जाता है, फेल इंसान बना दिया जाता है। एक महीना हमने ऐसा गुजारा जिसमें कोई ढंग का वक्त नहीं गुजारा तो हम तरक्की करने की कुछ सिफतें हमारे अंदर कम हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे अंदर की खूबी मर जाती है, काम की सलाहियत मर जाती है, बेकार रहने की आदत पड़ जाती है, टाइम किलिंग की आदत पड़ जाती है। तो वक्त को सही नहीं गुजारेंगे, उसको ऐसी काट देंगे तो वक्त हमको काट देगा। अल-वक्त सैफुन कातिउन फरमाया है, वक्त तेज काटने वाली तलवार है। इल्लम तख्ता हूँ यख्ता का, तुम उसको ढंग से नहीं गुजारोगे तो वो तुमको काट के चला जाएगा, तुम्हारी सलाहियतों को मुर्दा करके चला जाएगा। क्या करो जो एक महीने से कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। अब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, एक महीना गुजरा तो उस आदमी का लेवल गिर गया है, कुव्वत अमल गिर गई है, काम करने की शक्ति कम होगी उसके अंदर की, पब्लिक में उसका मुकाम गिर गया है, घर वालों में उसकी हैसियत गिर गई है, उसकी अपनी नज़र में उसकी हैसियत गिर गई है उस एक महीना खाली जाने से। तो वक्त तुमको काट देता है अगर तुम सही वक्त को नहीं गुजारो, सही वक्त। बार बार तवज्जो दिलाई जाती है कि हमारे पूरे साथी जो है अपना एक निज़ाम और टाइम टेबल बना के जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं मंसूबे से। इसलिए कि एक मोमिन होने के नाते बहुत सारे काम हमको करना है, कल क़यामत में हिसाब देना है, उसको हम सेट नहीं करेंगे तो ऐसे ही वक्त चला जाए। देखो टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जब तस्करा होगा तो उसको नोट कर लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बुनियादी तौर पे टाइम टेबल हमारा रोज़ाना का जो है ना, उसमें पहला जो सेटिंग होना है, अल्लाह के लिए कुछ वक्त गुजरना है, क्योंकि हम अल्लाह के, टाइम अल्लाह का। सुबह में बात हुई मुराद से पहले कि मोमिन का अल्लाह से जो ताल्लुक़ रहता है बहुत ही पावरफुल रहता है, अच्छा ताल्लुक़ रहता है, मोहब्बत का ताल्लुक़ रहता है, अल्लाह को याद करता रहता है, वो दुआएं पढ़ता रहता है, वो नवाफिल पढ़ता है, वो अल्लाह का कलाम उठा के पढ़ता है, एक अच्छा ताल्लुक़। तो सबसे पहले जो हमारी सेटिंग होनी चाहिए, अल्लाह के लिए वक्त हमारा, और इसकी तफसील याद रखिए कि पहले नमाज़ें, फ़र्ज़ नमाज़ें नंबर 1 पे, फ़र्ज़ नमाज़ें जमात के साथ, एहतमाम के साथ। फिर उसमें सुबह में आज किया जाएगा कि एक नफिल तो पढ़ना चाहिए, एक नफिल तो पढ़ना चाहिए, 4 नफिलों में से इशराक़ है, चाश है, अवामीन, तहज्जुद 4 है, उसमें तो कोई एक पढ़ना चाहिए। और जो दावती लाइन के लोग हैं, और हम लोग सब दावती लाइन के, मुसलमानों को भी अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है, आम इंसानों को भी बुलाना है, तो दावती काम की ताकत तहज्जुद से आती है। तहज्जुद होना, और अल्लाह ताला से बातें करना जरूरी है, मुनाजात तन्हाई में, तो नफिल कर दिया तो मुनाजात जरूरी है।
اردو میں اپنا غم بولے اللہ کو، اپنے پلان بولے اللہ کو، اپنی خواہشیں بولے اللہ تعالیٰ کو، اپنی مجبوریاں بولے اللہ تعالیٰ کو، کون کون ستارہ بولے اللہ تعالیٰ کو، کس کس کا دل جیتنا ہے بولے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ ہمارے کارساز ہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے باتیں کرنا ہو تو تھوڑا دل، جس کا دل صاف رہتا ہے، ذرا اللہ گناہ نہیں کر کے رہتا، اس کا دل لگتا ہے۔ ابھی جو ہے فون میں فلم دیکھ کے پھر دعا کرنا پڑے گا تو دل تھوڑی لگے گا، نہیں لگے گا، بیٹھے گا تو نہیں لگے گا۔ تو اللہ سے مناجات ہونے کے واسطے تھوڑا کچھ نیکی کرنا پڑتا ہے، گناہ ہوگا تو توبہ کرنا پڑتا ہے، تب دعا میں دل لگتا ہے۔ ایسا صاف دلی سے اللہ تعالیٰ سے مناجات ہوتی رہتی ہے، ہفتے میں 2-3 مرتبہ تو اچھی ہونی چاہیے اکیلے۔ تو اللہ سے تعلق کا وقت کرنا چاہیے، نمازیں ہیں، اور پھر جو ہے دعائیں یاد کر کے اس کی پابندی کرنا، مسنون دعائیں، اور تھوڑی دیر ذکر ضرور ہونا پوچھنا، مناجات کرنا، استغفار یا تو جہری ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، محبت بڑھانے کے لیے، عمل کی طاقت بڑھانے کے لیے، یا محبت کی۔ تو برحال اللہ تعالیٰ کے لیے وقت ہمارا ہے، تلاوت ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کے وقت میں، وہ بھی ہے کہ تلاوت ہو رہی ہو، اللہ کا کلام حق ہے اس کا۔ دوسرا جو ہے ٹائم ٹیبل میں اپنے اللہ کے حق کے بعد اپنے نفس کا حق، ہمارا نفس ہے، یہ جو بدن ہے، یہ جو اپنی زندگی ہے، اس کا حق، اس کا حق یہ ہے کہ بھائی آرام، ضروری آرام عمر کے حساب سے لینا چاہیے۔ ادھر ادھر جو ہے فونوں میں لگ کے، اس میں سے لگ کے نیند پوری نہیں ہو رہی تو گناہ ہو جائے گا۔ نیند جتنی ہونا ہے، نیند کی بڑی اہمیت ہے، عمر کے حساب سے نیند ہونا چاہیے، غذا وقت پہ لینا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل وقت گزر جا رہا ہے، بے وقت کھانا کھا رہے ہیں، صحیح کھانا نہیں کھا رہے ہیں، کم غذائیت والا کھانا کھا رہے ہیں، ہضم نہیں ہونے والا کھانا کھا رہے ہیں، یہ سب گناہ ہی۔ کھانے کو صحیح وقت دے رہے ہیں، کھانا کھاتے ہو دلچسپی سے نہیں کھا رہے، ادھر ادھر کی پریشانیاں سوچتے ہوئے، کم پتہ نہیں چلا، روٹی کھائے، کھٹا کھائے تو پتہ ہی نہیں چل رہا، بریانی کھا جا رہے تو پتہ ہی نہیں۔ کھانا کھاؤ تو پورا مزہ لے کے کھاؤ، کھانا اچھا کھاؤ، آپ کی ضرورت کے حساب سے کھاؤ، ڈاکٹر یا جو لوگ بول رہے وہ کھاؤ، آپ کے جسم کی ضرورت پوری۔ صفائی کے لیے وقت نکالنا، نہانے کے لیے وقت نکالنا، بالوں کی صفائی کے لیے وقت نکالنا، ناخن کے لیے وقت نکالنا، فریش رہیں گے اور اس سے صحت اچھی رہے گی، اور آپ اپنے ڈیوٹیز انجام دینے میں آپ کو مدد ملے گی فریش رہنے سے۔ ایسے کپڑے آپ کے صاف ہوں، دانت کی صفائی ہو، ناک کی صفائی ہو، تیل لگانے کا کوئی ایک نظام ہو آپ کا، پڑھائی کے حساب سے کتنا استعمال ہوگا دماغ کو، اس کے حساب سے خوب پڑھ رہے ہیں تو کوئی طاقت کی کوئی چیز کھاؤ خرید کے، یہ سب نفس کے اندر۔ کپڑوں کا صحیح انتظام، وقت پہ کپڑے استری کر کے رہنا، کون سے بڑے کپڑے ڈالنے کے نکل گئے تو بھی اندر جو ہے بیچے نہیں رہتی، رکھنے میں رکاوٹ رہتی۔ کپڑے پہنے تو ڈھنگ کے کپڑے پہننا، یہ بھی نفس کو اس میں آتا ہے۔ خوبصورت رہنا، کپڑے آپ کے حساب سے جمنے والے رہنا پڑتے ہیں، یہ سب نفس کے اندر۔ اور نفس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ٹینشنوں سے اپنے آپ کو بچانا، نفس کے اندر آتا ہے۔ خواہ مخواہ جو ہے ان کی لڑائی میں گھس کے جا کے بولنے کے آ گئے دوستوں کی باتیں، سالے کو اٹھا کے کچھ بول دیا ٹینشن شروع ہو گیا، سسرے کو بول دیا ٹینشن شروع ہو گیا، بیوی کو اٹھا کے کہتے بول دیا ٹینشن شروع ہو گیا۔ ٹینشنوں میں نہیں پڑنا، وہ ہمارے نفس کا بہت بڑا حق ہے۔ آدمی کو فکروں سے بہت مر جاتا ہے، فکروں میں ڈالنے والی زندگی نہیں گزارنا چاہیے، خواہ مخواہ کے جھگڑوں میں، خواہ مخواہ کی چیزوں کی فکروں میں نہیں ڈالنا، وہ بہت بڑا حق ہے، ٹینشنوں میں نہیں ڈالنا۔ تو بہرحال یہ نفس کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے، وقت پہ نہانے کے لیے، وقت پہ جسم کی ناخنوں کی صفائی کے واسطے اس کا ایک ٹائم ٹیبل، اس کا ایک نظام رہنا چاہیے، دانت کی صفائی کا نظام ہونا چاہیے، تیل لگانے کا نظام ہونا چاہیے، اس سے بھی جو ہے دین میں مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 3 پہ ہماری ٹائم ٹیبل میں گھر والوں کا، اہل و عیال کے لیے وقت مقرر ہونا چاہیے۔
बच्चे छोटे बच्चे हैं तो उनको हम टाइम दे रहे हों, बहुत मोहब्बत से पाल रहे हों, और बीवी को वक्त हम दे रहे हों, बीवी के तकाज़ों को हम समझ रहे हों, बीवी के साथ कुछ वक्त तो तन्हाई में देना ज़रूरी है। जब मियाँ बीवी के अलावा कोई ना हो ऐसा वक्त, ताकि वो अपने दिल की कोई ज़रूरत बोल सके। हमेशा उन बच्चों में बिजी, आप बच्चों में बिजी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बीवी के लिए वक्त, बच्चों के लिए वक्त, उनके दिल बहलाई के लिए वक्त, थोड़ा हो मगर हो, इतना होना है उतने होना, उसी के अंदर खो जाना नहीं। हेलो यार, उनकी ज़रूरियात को समझना। उनको हॉस्पिटल ले जाने को टाइम ही नहीं मिला आपको, बीमार चल रहे हैं, 10-10 दिन से चल रही उनकी तकलीफ, ले जाता हूँ, कल ले जाता हूँ, परसों ले जाता हूँ, ले जा रही है। दवाई नहीं ला रहे आप, तरकारी नहीं ला रहे आप वक्त पे, क्या कि उनको पढ़ाते रहना। ये सब क्या है, आप बिजी कुछ भी नहीं है, मनसूबाबंदी नहीं है, सलीका नहीं है, वरना सब काम होता है। घर के कामों में पूरा हिस्सा लेना, घर को बिल्कुल अल्लाह के नाम पे छोड़ देना नहीं। अल्लाह आपके नाम पे छोड़ दिए उनको, खलीफा बनाए, तो आपके नाम पे बीवी बच्चों घर को छोड़े, अब आप अल्लाह के नाम पे छोड़े। अगर उसमें भी ऐसी प्लानिंग होना कि कम वक्त में हो जाए काम, मगर पूरे काम हों। बल्ब शार्प हो गया, कई दिन हुआ बल्ब भी नहीं लगा, एक नल टपक रहा, 1 महीने से टपक रहा, प्लम्बर भी नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं होना। तो काम पूरा काम जो है हमारे हफ्तावारी प्लानिंग में पूरे काम रहना, ये हफ्ते में क्या क्या घर नई ज़रूरतें क्या पैदा होती है, पैसा करना है, मुस्तकिल ज़रूरतें कौन सी है। और नंबर 4 पे दीन के लिए, दावत दीन के लिए वक्त, इसलिए नजात के लिए दावत दीन ज़रूरी है। उसी में आपका ये दीनी दोस्ती आ जाता है, दोस्तों से फ़ोना करना है, मुलाकातें करना है, इसके लिए वक्त फारिग करना है, इबादत के लिए फारिग करना है, दरमियान मुलाकात के लिए फारिग करना है, दूसरे को दीन की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए वक्त फारिग करना है, ये सब दावत दीन के लिए। इसी में आता है उलमा से रब्ता करना, ऐसे ही उलमा की महफिल में जाना, कोई अच्छे इज्तिमात में जाना, कोई क्लासेस लेना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और एक हमारी ज़िंदगी में खाना होना बहुत ज़रूरी है, सिला रहमी का, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने के लिए। चले महीने में चाहे टाइम रखें, आप हफ्ते में रखें, रोज़ ना रख सकें, मगर आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए कि आप अपने भाई बहनों रिश्तेदारों की खबर ले सकें। तो टाइम टेबल बना हुआ रहेगा तो खुद ब खुद वरना 1-2 महीने गुजर जाएगा, अरे मैं इतने देर फोन नहीं करा, नहीं कहाँ करेगी, आए भी नहीं, फोन भी नहीं करे। निज़ाम बनाएगा आदमी तो इसका भी रिश्तेदारों के। उसके बाद ये भी है पड़ोस का हक भी, हम जिस महल्ले में रहते हैं या हम जिस कैंपस में रहते हैं, कोई किसी से ताल्लुक नहीं है, पड़ोस का हक है, उसको भी हम मेंटेन करके रखेंगे, फला टाइम करूँगा, निकाल के रखूँगा, वो होता है। रोज़ निकालने की चीज़ नहीं है, हिसाब से हर एक की ज़िंदगी का सेटअप अलग है। तालिब इल्म है तो उन्हें तालिब को पूरे 90% टाइम देके बाकी में सेट करना। हाँ, हर आदमी की लाइफ के एतबार से टाइम इन सब मदद को अलग अलग कहीं कम दे रहा है, और एक मुसलमानों का हम पे हक है, उम्मत का हम पे हक है, और उसी के उम्मत का हम पे हक है। कामिल उम्मत को खिदमत का काम है, मुसलमानों की इबादत का काम है, क्योंकि वो मुसलमानों की हमदर्दी का काम है। इतने सब काम करने वाले को मुसलमान बोलते हैं। अब इतने सब काम सेट होंगे तो कर पाएंगे हम, वरना 2-3 कामों में जो है हमारा बात। मेरे दोस्तों, हमारा यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगी को हम दोज़खी बनने से बचाएं, सब मिलजुल के हम दीन पर चलने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला ने हमको हमारी ज़िंदगी में नया साल भी दिया है, कोरोना के बाद का एक नया दौर भी दिया है। सही प्लानिंग के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अब ये दावत के सिलसिले में कुछ चीज़ें मुज़ाकरे की है कि ये जब से दुनिया में कोरोना आया है, अभी कोरोना जाएगा कब मालूम नहीं पूरी तरह। तो वैक्सीन आके सबको लग जाएगी तब भी खौफ जाएगा नहीं जाएगा मालूम नहीं। तो जब तक के लिए एक दूसरे से दूरी का एक कानून चल रहा है, इसकी पाबंदी करना। अब इसके बावजूद हमारी दीनी कैफियत में कमी नहीं आना और हमारी दीनी जिम्मेदारियों के अदा करने में कमी नहीं आना। वो शक्ल सुन लीजिए, 1-2 दिन का होता, 1 महीने 2 महीने का कोरोना का ज़माना होता तो हम सरगर्मियाँ रोक ले सकते थे।
अब ये कब तक चलेगा मालूम नहीं है माहौल। इस वजह से कोरोना के बावजूद इसकी पाबंदियों पर अमल करते हुए हम किस तरह अपने दीनी दोस्तों से राब्ता रखेंगे वो आप सोच लीजिए। किस तरह आप दीनी महफिलों में शरीक, महफिल में नहीं आएंगे तो महफिल में आइए मगर बीमार मत होइए, इसका भी ख्याल रखिए। और जगह कोई महफिलें कीजिए मगर पूरे शरायत के साथ कीजिए, रवाबित रखिए मगर शरायत के साथ। कोरोना काल हमने क्या सिखा दिया है, ऑनलाइन जिंदगी गुजारो वो सिखाया। स्कूल ऑनलाइन हो गए हैं, घर का सामान पूरा ऑनलाइन आ जा रहा, हर चीज़ ऑनलाइन हो जा रही है। तो अब दीनी जिंदगी भी सब ऑनलाइन शुरू करो बोल के हम कभी ऐसा भी बला खा रहा है कि भी आ रहा है। तब से कोरोना ऑनलाइन बयान शुरू हो गया, आपको कई ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो शुरू हो गया। क्यों? मजबूरी है, लोगों से राब्ते कोई शक्ल ही नहीं। अब हर जो है हफ्ता कहीं ना कहीं एक दो शहरों का सफर होता था, मेरा बंद हो गया। अब ये जाएगा कम से कम। तो जो राब्ते लोगों के जो इस वक्त डिस्टेंस के हो गए ना, उसके बावजूद अब दीन का काम नहीं रोकना हमारे साथ। और ऑनलाइन होने से और आसान हो रहा है अब, और सुनते लोग नहीं। अच्छा, पहले लोगों को आदत नहीं थी ऑनलाइन, लोग सादे सीधे लोगों को भी ऑनलाइन की आदत हो जाती, लाइन पे रहना शुरू कर दी तो बात फैलाना आसान हो गया। और ये गैर मुस्लिमों में दावत के साथ भी ऑनलाइन का ताल्लुक हो गया कि वो लोग भी अब ऑनलाइन बोलते हैं। और अब जो है हम किसी गैर मुस्लिम से मिलने को जा नहीं सकते, वरना हर हफ्ता साथ ही जाते थे। अब वो लोग इतने डरपोक थे कि सामने कोई आ रहा तो मौत का फरिश्ता आ रहा था, उनको जिंदगी की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उनसे। अब आप उनसे मुलाकातों के लिए अगर आप नहीं जा सकते, कब तक नहीं जा सकते मालूम नहीं। तो उसका तोड़ ये है कि आप ऑनलाइन इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन बगैर मुस्लिमों तक पहुँचिए। ऑनलाइन कैसा कैसा दुनिया पहुँच रही है तो समझिए। अब फेसबुक वगैरह पे जो है ऐसा इंतज़ाम है कि जो टॉपिक चल रहा है उसमें आप शामिल होकर अपना हिस्सा लिए तो पूरे मुल्क में लाखों लोग देख रहे हैं कि टॉपिक पे हिस्सा ले। ट्रेंड जो बन जा रहा है रोजाना, आज ये ट्रेंड है कल ये ट्रेंड है, इन्हें खास मौजू पे आप पूरा मुल्क का एक मौजू बना दे सकते हैं, पूरे लोग उसमें हिस्सा लें। ऐसा डेवलपमेंट होते होते से आगे कि सब अपने घरों पे बैठे हुए मगर लाखों लोग एक ही टॉपिक पे बोल रहे, सबके ट्यून्स एक ही मौजू पे हो रहे। ये सहूलत होगी अल्लाह की तरफ से। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैहि क्या है, कहीं भी नई लाइन पड़ रही रेल की और कहीं सड़क पड़ रही तो वो तो हाँ अल्लाह ताला जमात को भेजने का इंतजाम कर रहे हो। तो अब ये जो ऑनलाइन कई लाख लोगों तक बात पहुंचाने का, और आम आदमी पहले का आप लोगों को तब्दील करना सीखना पड़ता था, इससे राइटिंग लिखना शुरू करना बड़ी सलाहियत की जरूरत होती थी। अब क्या है कि आप ही बोलो डाल दो अपनी लैंग्वेज में बात करें। पहले कोई मजमून आप छापना हो तो मेयादी मजमून लिखना पड़ता था। अब रेडियो पे आके बात करना हो तो आप कितने बड़े मौलाना होना पड़ता था रेडियो पे आपको। अब इतना बड़ा मीडिया आपको फ्री में मिल गया, आपको आता जाता कुछ भी नहीं, बहुत लिखने की महारत नहीं। अब मेन बात मालूम है कैसा भी लिख दो। तो ऑनलाइन काम करने का जमाना आ गया, इसलिए कि जिंदगी ऑनलाइन हो गई और जो है दुनिया वाले इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन करने के चक्कर में जो नोटबंदी की है कि सब लोग पैसे घर में नहीं रखना, ऑनलाइन सबके हिसाब किताब रहना बोल के वो करें। तो ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन करने की चक्कर चल रही है यहूदियों की तरफ से या किसी तरफ से। तो अपन क्या करना, वो ऑनलाइन को जरिया बना देना है दीन की दावत पहुंचाने। अच्छा, हम पहले हमारा यहाँ उसूल क्या था कि एक एक आदमी से बात करके लाओ। हम पोस्टर भी नहीं लगाते, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, पोस्टर नहीं लगाते थे कि भाई वो पोस्टर से जो लोग आते हैं ऐसे ही आते सुन के चले जाते, लिंक नहीं बनता। एक दूसरे की तरबियत होने के लिए फर्द से फर्द मेहनत करे, लायक काम करे, ये उसूल हमारा था। तो तरबियत के वास्ते, इंसान के अखलाक बदलने के वास्ते, इंसान की सिफात बदलने के वास्ते तो सोहबत ज़रूरी है। जिससे एक आदमी का आदमी से राब्ता ज़रूरी है दिलों पे असर करने के वास्ते। लेकिन खाली नॉलेज शेयर करने के वास्ते, इत्तलात देने के वास्ते मीडिया बहुत मुफीद है। दिलों को बदलने के वास्ते महफिलें फर्ज से फर्ज राब्ते की अहमियत है।
لیکن صرف ذہن بنانا ہے، صرف نالج شیئر کر دینا ہے تو میڈیا سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو دعوت کا جو کام ہے، اپنے غیر مسلموں میں بات کرنے کی جو چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ حالات پورے عالم میں ایسے بنا رہے ہیں کہ 99% کام اللہ کر دیتے، بول رہے ہمارے کو 1% کرو بولے، یعنی ان کا ذہن بدلنے کے واسطے جو بالکل دنیا میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کے یا اپنی پارٹی کے جو خیالات کے اندر پکے ہوتے ہیں، بات سننے کے واسطے تیار ہی نہیں ہے، نئی بات سننے کے واسطے تیار نہیں ہے، تو کیا ہے ان کا دل جیتنے کے واسطے دوستیاں کرنا، ان کی خدمت کرنا اور کیا کیا کر کے کرنا پڑتا تھا نا۔ اللہ تعالیٰ بولے وہ سب تم لوگ کچھ بھی نہیں مت کرو، اب چینج کر دیا اللہ تعالیٰ یہ چند مہینے سے، اب خالی تم لوگ میڈیا کے ذریعے خالی بولو، باقی وہ دلوں کو بدلنے کے لیے جو چینجز آنا ہے وہ میں کر دوں گا، وہ کہ اللہ تعالیٰ جنگوں کا سلسلہ بھی چلا رہا ہے۔ اب تیسری عالمی جنگ کے حالات بن رہے ہیں، تو چائنا جو ہے بہت بڑی تعداد میں ملکوں کے اندر روڈ اینڈ بیلٹ بول کے اربوں روپے کا سرمایہ لگایا ہوا ہے اپنا بزنس اور پھیلانے کے واسطے۔ اب امریکہ تلا ہوا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ اب چائنا کے منصوبے آگے بڑھنا امریکہ کی موت ہے، اور امریکہ کی تمنا پوری ہونا چائنا کی موت ہے۔ دونوں اپنا اپنا پلان بنا کے لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی سے کیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ دنیا میں اتھل پتل ہوتی ہے کہ پرانے خیالات ہمارا حد سے اڑ جاتے ہیں، نئی بات قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلی جنگ آزادی ہوئی دنیا میں کئی نئے سسٹم شروع ہوئے، دوسری جنگ عظیم ہوئی دنیا کے اندر کئی نئے سسٹم شروع ہوئے، اب یہ تیسری جنگ عظیم تو اسی ملک کے پاورفل رہ گئی ہے، تو پورے پرانے خیالات اکھاڑ کے نئے خیالات لانا آسان رہتا ہے۔ تو چونکہ جنگ بھی عالمی ہو رہی ہے، پوری دنیا عالم ایک گلوب، پورا گلوب ایک گھر کی طرح ہو گیا ہے، اس موقع پہ ہم صرف یہ آواز اٹھائیں اگر پوری دنیا میں میڈیا کے طرح کہ بھئی ساری دنیا کا ایک ہی دن آنے والا ہے، ساری دنیا خالی آپ بولنا بول کے چھوڑ کر، اب یہ دور آ گیا ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن آنے والا ہے، اب دنیا ایک ہو چکی ہے، عالم ایک ہو گیا ہے، سارے مذہبوں کی کتاب میں ہے کہ آخر میں سچ آنے والا ہے، سچائی کا زمانہ، وہ دور قریب آ گیا ہے، اب جو ساری دنیا میں ایک ہی دن آنے والا ہے، یہ خالی بولنا شروع کر دینا میڈیا میں۔ وہ دن جس کو ساری قومیں قبول کریں، وہ دن کیسا ہو سکتا ہے؟ تو پورے شرائط اسلام میں اترتے کہ وہ دین جس کو سب اپنا